Hello and welcome. Welcome to the third learning session of chapter number 10 of Science and which is space missions. So far in this chapter, we have looked at what are space missions, what is the need and what is the importance of space missions, what are artificial satellites and what are their orbits. So depending on the height of these artificial satellites from the Earth's surface, we classify them into high Earth, medium Earth and low Earth orbits, right? And all of these orbits have their own characteristics, and we had looked at all of them in detail in our last learning session. In today's learning session, we're going to look at satellite launch vehicles, and we're just going to introduce space missions away from the Earth, and we're going to look into details of space missions away from the Earth in the next learning session. Mostly, we're going to focus on satellite launch vehicles in today's learning session. The objective for today is going to be students will be able to explain various stages of satellite launch vehicles. Okay, let's begin. Uh, okay. Satellite launch vehicles are used to place satellites in the specific orbits. तो जो satellites होते हैं artificial satellites, उसको orbits में डालने के लिए जो हम vehicle use करते हैं, vehicle यानी गाड़ी, okay? So जो vehicle use करते हैं उनको orbits में डालने के लिए उनको हम satellite launch vehicles बोलते हैं. The functioning of the satellite launch vehicle is based on Newton's third law of motion. Do you remember Newton's third law of motion? I'll give you all 5 seconds to just pause and think if you remember Newton's third law of motion. Okay, 5 seconds are up. So Newton's third law of motion says every action force has equal and opposite reaction force, and both of these forces act simultaneously. Okay, so say for example, I am pushing one of my hands with my other hand, then the other hand is also is going to push my first hand, and both these forces will be equal and opposite direction में होंगे, and both of them will act at the same time. That is the meaning of Newton's third law of motion. Every action has equal and opposite reaction. Okay, so using this Newton's third law of motion, satellite launch vehicles place the artificial satellites in orbits. Okay. The launch vehicle uses specific type of fuel, तो तुम उसमें केरोसिन या फिर तुम उसमें पेट्रोल डीजल डाल के तुम उसको नहीं उड़ा सकते. एक स्पेशल टाइप का फ्यूल होता है उसमें. The gas produced due to combustion of the fuel, combustion यानी जलाना. Okay, so जैसे ये फ्यूल जलेगा तो उसकी वजह से जो गैस प्रोड्यूस होने वाली है, it expands due to its high temperature. देखो यहाँ पे देख के थोड़ी गर्मी लग रही है, बराबर. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर जो कोई भी गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सपांड होने लगेगा. ओके, एंड क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है, और यहाँ पे नोजल नोजल ये वर्ड यूज किया, राइट? नोजल नोजल यानी क्या? ये जो ओपनिंग है उसको हम नोजल बोलते हैं. तो नोजल एकदम छोटा है और गैस एक्सपैंड हो रहा है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो जोर से बाहर निकलेगा, इजंट इट? सो इट इज एक्सपेल्ड. एक्सपेल्ड करना यानी बाहर फेंक देना, फोर्सफुल यानी जबरन, जबरदस्ती. ओके, so it is expelled, it yani kya? Gas produced. So the gas produced is expelled forcefully through the nozzles at the rear yani piche, at the rear side of the launch vehicle. As a reaction to this, a thrust acts on the vehicle. Thrust matlab kya? Thrust yani force. Okay, a force acts on the vehicle which drives the vehicle high in the space. I'm going to quickly revise what is going to happen. Newton's third law of motion says every action has equal and opposite reaction. तो तुम इस लॉन्च व्हीकल में एक स्पेशल टाइप का फ्यूल यूज करोगे. वो फ्यूल जलने के बाद, कंबशन के बाद एक गैस रिलीज होने वाली है. वो गैस रिलीज होते ही बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपैंड होने वाला है. व्हाई इज इट गोइंग टू एक्सपैंड? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है. सो एक्सपांड होके ये जो नोजल है पीछे, नोजल यानी ओपनिंग, उसमें से बहुत जोर से बाहर निकलने वाला है, फोर्सफुली निकलने वाला है. फिर गैस नीचे फोर्सफुली नीचे जा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा लॉन्च व्हीकल पे, बराबर. सो द launch vehicle is going to go high up in the sky because of the gas coming out forcefully. That's how launch vehicles work. Okay, यहाँ पे जितने फोर्स से गैस नीचे आएगा उतने ही फोर्स से ये लॉन्च व्हीकल ऊपर जाएगा. Okay. The structure of the launch vehicle is decided by weight of the satellite and type of the orbit. कौन सा टाइप का तुम लॉन्च व्हीकल यूज करोगे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. जो तुम्हारा सैटेलाइट है उसका वजन कितना है और कौन सा टाइप का ऑर्बिट में उसको डालना है. तुम्हें लो अर्थ ऑर्बिट में डालना है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में डालना है, हाई अर्थ ऑर्बिट में डालना है, सर्कुलर ऑर्बिट में डालना है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में डालना है. इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट एज वेल. ओके, तो वजन और कौन से टाइप का ऑर्बिट, उस पर डिपेंड करेगी तुम्हारा लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर क्या होगा. द फ्यूल ऑफ द व्हीकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स. कौन से टाइप का फ्यूल यूज करना है वो भी इस पे डिपेंड करने वाला है.
The fuel forms a major portion of the total weight of the launch vehicle. Thus, the vehicle has to carry a large weight of the fuel with it. Okay, so fuel तुमने देखा right in the photo कितना ज्यादा जल रहा है देखो. ओके, और ये बहुत टाइम के लिए जलेगा, ये जब तक ऊपर नहीं पहुंचता तब तक ये जलते रहेगा. तो बेसिकली इसका जो मेजर पार्ट है इस लॉन्च व्हीकल में, वो मेजर पार्ट फ्यूल है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूल यूज होता है. ओके, इवन व्हेन वी सी द एक्चुअल फोटो ऑफ अ लॉन्च व्हीकल एंड एनिमेशन ऑफ द लॉन्च व्हीकल, यू विल सी कि सबसे जो बड़ा टैंक होता है वो बड़ा टैंक फ्यूल का ही होता है. तो फ्यूल का बहुत ज्यादा वजन होता है, और तुम्हें कोई चीज अगर स्पेस में डालनी है तो उसको ग्रेविटेशन को बीट करना पड़ता है अर्थ के. तो 1 किलो भी अगर तुमने अपना वजन बढ़ा दिया तुम्हारे लॉन्च व्हीकल का, तो तुम्हें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक एक किलो से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. इनफैक्ट किलो तो बहुत ज्यादा हो गया, 100 ग्राम से भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर 100 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया तुमने सैटेलाइट पे, तो उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा. जितना ज्यादा फ्यूल लगेगा तो उतना ज्यादा वजन बढ़ेगा, जितना ज्यादा वजन बढ़ गया और फ्यूल लगेगा. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. ओके, अगर तुम्हारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में वजन बढ़ गया, तुम्हें ज्यादा फ्यूल लगेगा. ज्यादा फ्यूल लगा तो फ्यूल का भी तो वजन होता है, तो ज्यादा फ्यूल लगेगा तो वापस वजन बढ़ गया, वापस वजन बढ़ गया तो और फ्यूल लगेगा. इसलिए मैथमेटिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है. इवन इफ यू इंक्रीज योर वेट बाय 100 ग्राम्स, मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ओके, एंड यू हैव टू मेक मेनी चेंजेस. सो वो जो लॉन्च व्हीकल का मेजर पार्ट है, मेजर सबसे ज्यादा वजन है वो फ्यूल का ही होता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और फ्यूल का खुद का वजन इतना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा फ्यूल. तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. सो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, लॉन्च व्हीकल्स विद मोर देन वन स्टेज इज यूज्ड. ओके, सिर्फ एक स्टेज नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेज होगा किसी भी लॉन्च व्हीकल में. ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इट्स लॉन्चिंग. ओके, अगर 2-3 स्टेजेस होंगे ना लॉन्च व्हीकल में, तो क्या करेंगे? पहले नीचे वाला स्टेज है, नीचे वाले स्टेज में जो फ्यूल होगा उसको बर्न कर देंगे, एक हाइट पे चले जाएंगे. उस हाइट पे पहुंचने क्या हो, तो नीचे वाला जो स्टेज है वो निकाल देंगे, तो उसका जो टैंक का वजन है वो कम हो गया. तो टैंक का वजन कम हो गया, फ्यूल का वजन भी कम हो गया, तो भी और फास्ट जाएगा. ये और थोड़े हाइट पे जाने के बाद जो दूसरा स्टेज होगा उसको भी निकाल देंगे. दूसरा स्टेज निकालने के बाद उस सेकंड स्टेज का जो टैंक था उसका भी वजन कम हो गया, सेकंड स्टेज का जो फ्यूल था उसका भी वजन कम हो गया. तो इसे स्टेप बाय स्टेप वजन कम होते जाता है लॉन्च व्हीकल का. एंड हेंस तुम्हें कम फ्यूल में ऑर्बिट में सैटेलाइट को तुम डाल सकते हो. ओके, दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट और मल्टीपल स्टेजेस इन योर लॉन्च व्हीकल. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ लॉन्च व्हीकल हैविंग 2 stages. अगर समझो 2 स्टेजेस वाला लॉन्च व्हीकल होगा. फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल, द फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेजेस यूज्ड. तो उसको पहले लॉन्च करने के लिए स्टार्टिंग में अर्थ के सरफेस से उठाने के लिए जो फर्स्ट स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज का फ्यूल और इंजन को यूज करेंगे. दिस इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल एंड टेक्स इट टू अ सर्टेन. इस जो फर्स्ट स्टेज है उसका फ्यूल यूज करके, उसका इंजन यूज करके कोई ना कोई वेलोसिटी मिलेगी और किसी ना किसी हाइट पे चले जाएगा. वंस द फ्यूल इन फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी खत्म हो जाना, फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन आर डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल. तो जैसे ही फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, तो फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल है, सॉरी फ्यूल तो खत्म हो गया, राइट. फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल का टैंक है और फर्स्ट स्टेज का जो इंजन है, दोनों को डिटैच कर देते हैं. डिटैच करना यानी अलग हो जाना, तो मेन बॉडी से अलग हो जाता है. ओके, और अलग होने के बाद इट फॉल्स आइदर इनटू अ सी और इन एन अनपॉपुलेटेड एरिया. तो समझो अगर तुम लोग ने नागपुर से कोई दो स्टेज वाला रॉकेट को लॉन्च कर दिया, नागपुर से लॉन्च किया, मुंबई के ऊपर आ गया, फर्स्ट स्टेज तुमने छोड़ दिया, पता चला जो फर्स्ट स्टेज है मुंबई में कहीं पे तो गिर गया लोकल ट्रेन वगैरह पे, और 100 से लेके 1000 लोग मारे गए. वैसा नहीं होना चाहिए, बराबर. तो जनरली ये जो लॉन्चेस होते हैं, दे लॉन्च नियर द कोस्टल एरिया से लॉन्च करते हैं, ताकि ये जो स्टेजेस गिर गिर के वापस अर्थ पे आते हैं वो किसी भी इंसान पे ना गिरे, किसी भी पॉपुलेटेड एरिया पे ना गिरे. वो जनरली सी में, पानी में गिर जाते हैं. और अगर समझो पानी में नहीं गिर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लैंडलॉक्ड कंट्री होगा जिसके आजू बाजू कोई सी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा एरिया देखेंगे जो डेजर्ट टाइप होगा जहाँ पे ज्यादा लोग रहते नहीं है, वहां से लॉन्च करेंगे, ताकि वो जो फर्स्ट स्टेज नीचे गिरेगा वो किसी इंसान पे नहीं गिरना चाहिए. ओके, सो अब तक क्या हुआ है, हमने 2 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल लिया. फर्स्ट स्टेज का इंजन और फ्यूल टैंक छोड़ दिया हमने, उन्हें नीचे गिर दिया. ओके, अब तक की कहानी यहाँ तक पहुंची है. As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. जैसे ही फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल है वो खत्म हो गया, सेकंड स्टेज का जो फ्यूल है वो जल जाता है. इग्नाइट होना यानी जलना, शुरू हो जाना. ओके,
However, the vehicle now contains only one stage. Okay, फर्स्ट स्टेज को तो हमने निकाल के डिटैच कर दिया, बराबर, वो वापस अर्थ पे गिर गया, तो अभी उसके पास सिर्फ सेकंड स्टेज है. ओके, फर्स्ट स्टेज का इंजन भी चला गया, फर्स्ट स्टेज का फ्यूल का टैंक भी चला गया, अभी उसके पास सिर्फ सेकंड स्टेज है. The weight now being reduced, the vehicle can move at a higher speed, क्योंकि अभी वजन कम हो गया, राइट. टैंक का भी वजन कम हो गया, फर्स्ट स्टेज का इंजन का भी वजन कम हो गया, तो अभी वजन कम होने की वजह से वो अभी ज्यादा स्पीड पे जा सकता है. ओके, ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स आर मेड ऑफ आइदर टू और मोर स्टेज. कोई भी एक स्टेज का रॉकेट जनरली आजकल नहीं बनाते, कम से कम दो तो होते ही है, और जनरली दो से ज्यादा ही होते हैं. As an example, the structure of Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), I told you, right? Indian Space Research Organization or ISRO is an expert at PSLVs. Okay, PSLV से जितने भी satellites launch करता है ISRO, हमेशा correct orbit पे जाके launch कर देता है और बहुत सस्ते में करके देता है. So Indians are experts of PSLVs. So जो हमारा ISRO का PSLV है, ये हमें इस डायग्राम में बताया. So here you can see there are many stages. Okay, फर्स्ट है इनिशियल थ्रस्ट के लिए इंजन है और सॉलिड फ्यूल है, फिर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज के ऊपर यहाँ पे इतना सा छोटा सा पार्ट तुम्हारा सैटेलाइट होता है. तो इफ यू सी, मेजर पोर्शन तुम्हारा फ्यूल से ही भरा होता है और तुम्हारा सैटेलाइट एक्चुअली एकदम छोटा होता है. ओके, तो लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस. ओके, एक बार तुमने लॉन्च व्हीकल को ऊपर भेज दिया और वो ऑर्बिट में चला गया, तो तुम्हारा लॉन्च व्हीकल किसी काम का नहीं है, एक बार ही यूज कर सकते हैं, इसलिए बहुत महंगा होता है. ओके, अगर 1 ग्राम 10 ग्राम, 1 ग्राम नहीं लेता हूँ मैं, 10 ग्राम लेता हूँ, 10 ग्राम भी अगर तुमने इंक्रीज किया वजन, वो 10 ग्राम को तुम्हें स्पेस में लेके जाने के लिए यू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज, इतना महंगा होता है. सो एवरी ग्राम इज अकाउंटेड फॉर. थोड़ा सा भी वजन बढ़ गया तो तुम्हें लाखों रुपए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, फ्यूल पे, इंजीनियरिंग पे, मैथमेटिक्स पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इसलिए काफी महंगा होती है, तो उसको एक ही बार यूज करते हैं हम लोग. जस्ट इमेजिन अगर हम लोग ऐसे गाड़ी बनाने लग गए तो सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं. ओके, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने मुंबई से लेके मैं पुणे तक चला गया 3 घंटे के रास्ते के लिए, बस अभी उसको वापस में यूज नहीं कर सकता हूँ. तो अगर एक ही बार यूज कर पाएंगे तो बहुत महंगा होगा, बराबर, क्योंकि हम बार बार यूज करते हैं, इसलिए वो सस्ता लगता है, क्योंकि हम 5-10 साल के लिए यूज करेंगे, राइट. तो उतना हमारा टैक्सी का खर्चा कम होता है, रिक्शा का खर्चा कम होता है, इसलिए कार मेक सेंस. तो सैटेलाइट में ऐसा नहीं कर सकते कि सैटेलाइट से तुम यहाँ से मून में चले गए, उसको वापस लेके आए, वापस उसी सैटेलाइट में लेके गए, वगैरह वगैरह, वैसा नहीं होगा. नॉट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, तो सेम लॉन्च व्हीकल्स को बार बार यूज नहीं कर पाते, इसलिए बहुत महंगा होता है. USA has therefore developed space shuttle which returns to the Earth except for the fuel tank and can be used multiple launches. तो खर्चा कम करने के लिए यूएसए ने क्या किया है, ऐसे लॉन्च व्हीकल्स बनाए जो बार बार यूज करते हैं. ओके, सो लॉन्च व्हीकल में क्या क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है. एक तो है फ्यूल टैंक, तुम्हारा जो फ्यूल है उसको जिस टैंक में रखेंगे वो फ्यूल टैंक, और दूसरा चीज तुम्हारा स्पेस शटल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं. सो इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे जो ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज के लेफ्ट और राइट साइड में जो दो छोटे छोटे रॉकेट्स दिख रहे हैं. ओके, तो ऑरेंज टैंक एंड राइट और लेफ्ट में जो छोटे छोटे ऑरेंज दिख रहे हैं, बोथ ऑल थ्री ऑफ देम आर टैंक्स फॉर फ्यूल, वो फ्यूल टैंक्स है. और तुम्हारा जो स्पेस शटल है यहाँ पे दिख रहा है, जो एरोप्लेन की तरह दिख रहा है, हियर इज अ स्पेस शटल. तो यूएसए ने ऐसे लॉन्च व्हीकल्स बनाए कि टैंक्स को तुम बार बार यूज नहीं कर पाओगे, बट स्पेस शटल को एटलीस्ट तुम बार बार यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे तुम्हारे एस्ट्रोनॉट बैठते हैं, यहाँ से वो ऊपर जाएंगे. ओके, वंस द स्पेस शटल इज लॉन्च, ये ऊपर चला जाएगा. ऊपर चले जाने के बाद ये लेफ्ट और राइट के जो दो बूस्टर्स होते हैं, ओके, उसको बूस्टर रॉकेट्स बोलते हैं. लेफ्ट और ऑरेंज टैंक के लेफ्ट और राइट में जो रॉकेट्स है, तो पहले बूस्टर रॉकेट्स निकल जाएंगे. बूस्टर रॉकेट्स निकलने के बाद ये जो ऑरेंज टैंक है उसका फ्यूल यूज होगा, उसका फ्यूल यूज होने के बाद ऑरेंज टैंक भी नीचे अर्थ पे वापस गिर जाएगा, उसको वापस यूज नहीं कर पाएंगे. ओके, बट अभी ये जो स्पेस शटल है, स्पेस शटल अपना काम करेगा, जो कुछ भी उसको करना है वो काम करेगा, और काम करने के बाद वापस वो अर्थ पे आ जाएगा. ओके, सो इस स्पेस शटल को बार बार यूज कर सकते हैं, तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है स्पेस में जाने का. ओके, इनफैक्ट ये तो बहुत पुराना डेटा है. आई थिंक अभी जो नया कंपनी है इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स चालू किया है, स्पेस एक्स ने फ्यूल टैंक्स को भी रीयूज करना शुरू किया. इनफैक्ट इफ यू जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब री एंट्री ऑफ स्पेस एक्स फ्यूल टैंक्स, री-एंट्री ऑफ SpaceX फ्यूल टैंक्स, विल गेट अमेजिंग वीडियोस जहां पे वो सब रिकॉर्ड करते हैं. तो फ्यूल टैंक्स वगैरह पे ही वो लोग कैमरास अटैच करते हैं, तो यू कैन सी द एंटायर रॉकेट बीइंग लॉन्च्ड. वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव कर रहा है, फिर बाद में सैटेलाइट डिटैच हो जाता है और वापस नीचे आ जाता है, और वापस सीधा नीचे आ जाता है. तो फ्यूल टैंक है उसको वापस सीधा नीचे लेके आ जाता है अर्थ पे, उसको वापस 2-3 बार यूज कर सकते हैं, उससे खर्चा बहुत ज्यादा कम होता है.
फ्यूल टैंक्स को अगर तुम बार बार यूज करोगे तो बहुत खर्चा कम हो जाता है. सो Elon Musk SpaceX companies working on that and they are almost perfected it. Okay, so if you're interested, I highly recommend search SpaceX fuel tanks re-entry and you will get amazing videos of SpaceX space launches. Okay, next, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर अबाउट कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग. न्यूटन थर्ड लॉ यूज कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए इन ऑलवेज रिमेंबर बॉक्स वाले बॉक्स में. ओके, ब्लू बॉक्स में. सो आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दैट पार्ट एज वेल. द रॉकेट, अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज इन दिवाली, इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लॉन्चर. हम लोग जो रॉकेट यूज करते हैं दिवाली में वो भी एक लॉन्चर की तरह ही होता है. ओके, इन दिस रॉकेट द फ्यूल इज इग्नाइटेड यूजिंग अ फ्यूज. तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी को हम जब लगाते हैं उस रस्सी को फ्यूज बोलते हैं. ओके, तो स्पेस लॉन्च व्हीकल में जो इनिशियल बूस्ट मिलता है उसको, उसके यहाँ पे फ्यूज को जला के इनिशियल बूस्ट मिलता है. ओके, एंड द रॉकेट इज प्रोजेक्टेड इनटू द स्काई जस्ट लाइक अ सैटेलाइट लॉन्चर. तो वो फ्यूज जलाने के बाद जैसे सैटेलाइट लॉन्चर ऊपर चले जाता है वैसे ही हमारा रॉकेट भी ऊपर चला जाता है, दिवाली वाला फटाका जो होता है. Similarly, if a balloon is blown and released with its end open, okay, तुमने एक गुब्बारा ले लिया, गुब्बारे को तुमने फुला दिया और उसको बस ऐसे उंगली से पकड़ के रखा है और ये पूरा गुब्बारा फुला हुआ. As soon as you leave the knot, as soon as you leave the ending of the balloon, वो balloon वापस उड़ना शुरू हो जाएगा. Why is that? The same reason, same principle. The air in the balloon is forcefully ejected and the balloon is pushed in the opposite direction. तो अगर मेरे यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है, यहाँ पे बलून है. ओके, सो यहाँ पे बलून है, यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है. जैसे मैं छोड़ दूंगा तो अंदर का जो गैस है वो सब इस तरफ आ जाएगा, राइट. इट विल स्टार्ट कमिंग आउट इन दिस डायरेक्शन. बिकॉज द एयर इज कमिंग आउट इन दिस डायरेक्शन, द बलून विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे अगर एक फोर्स लग रहा है, एक्शन फोर्स, उसका रिएक्शन फोर्स बलून पे लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सेम टाइम पे एक्ट करेंगे, इसलिए वो बलून फिर दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ना शुरू हो जाता है. सो ये जो दिवाली में हम लोग रॉकेट यूज करते हैं वर्सेस जो बलून को फुला के हम छोड़ देते हैं, इन सब में एज वेल एज रॉकेट लॉन्चर में, सैटेलाइट लॉन्चर में, सब में सेम प्रिंसिपल यूज होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आई नो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग मजाक उड़ाते थे, राइट. न्यूटन ने अच्छा से 3 ही लॉज दे दिए, चौथा लॉ दे दिया होता तो हमें और पढ़ाई करनी पड़ती थी वगैरह वगैरह. सो वी आई मीन इट्स अ जोक, आई नो इट्स अ जोक, बट सीरियसली इफ यू थिंक, अगर न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होता तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी पढ़ाई कम करनी पड़ती. पर अगर न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होता तो हम वो रॉकेट लॉन्चर्स नहीं बना पाते, हमें इंटरनेट नहीं मिलता, हमें सैटेलाइट्स नहीं मिलते, हमें जीपीएस नहीं मिलता, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से इतना सब हम आज कर पा रहे हैं. हेंस न्यूटन इज सच एन इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट. उसका एक इतना सिंपल लॉ जो एक लाइन में बोल सकते हैं, बच्चे बच्चे को समझ में आता है, एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. इतना सिंपल लॉ की कितने ज्यादा एप्लीकेशंस है, राइट. So he's a very important scientist, and because of his laws, you enjoy many things today in technology. Okay. So what I'm going to do now is I'm going to show you all an animated video of various stages of space shuttle launch. Okay, it's a 15-minute video, but पूरा 15 minute का video नहीं देखेंगे. We'll just see a small part of it, and I'll link the video in the description. I'll also try to link the video to SpaceX के launches in the description if you're interested. So both these videos I'll put in the description of this video, and if you're interested you can watch the entire video, which is a 15-minute video. It's a beautifully animated video. You can just, when you see this video, it's not an actual video, okay, इसको सब animation से किया. It's a beautifully animated video and काफी simply explained किया. So this person is going to also talk and explain whatever is happening on the screen, so I'm just going to shut up while the video is being played. But if you're really interested, please check the description of this video and explore by yourself. Okay, so I'll start playing this video now. Okay, I'm not sure if the sound is going to be captured. Let me check this. Okay, I think I figured out the sound situation of this video. So when I play this video, you have to completely focus on what is being shown in the video and also try to listen to whatever the speaker is trying to explain while you are looking at the animation. Okay. At T-minus 6.6 seconds, the 3 main engines ignite. All 3 of them must work correctly or they will shut down and abort the launch. At the moment of liftoff, many things happen simultaneously. The gaseous hydrogen vent arm is retracted from the external tank.
The 2 connections at the tail service mast will retract. The 8 hold-down bolts will detonate, which frees the shuttle, and then both SRBs ignite. For their journey into space, the shuttle is mostly flown by the autopilot. Of course, the astronauts can still take over if they need to. Shortly after clearing the tower, they do what's called the roll program, to get the shuttle so that it's heads down for most of the ascent into space. This reduces the aerodynamic stress on the wings. It will also allow the astronauts to see the curve of the Earth as they ascend into space. Now, as we keep gaining more and more speed, the air in the atmosphere will create pressure on the front of the spacecraft. Then as we get higher, the air starts to thin out. They use the term max Q to refer to the time when the aerodynamic pressure will be at its highest. During max Q, the main engines will be throttled down, so we don't accelerate too quickly, but then shortly after we can throttle them back up again. A little more than 2 minutes after liftoff, the 2 SRBs have done their job. They are detached, and then small rocket motors on the bottom and on the top fire on each booster to ensure that they are separated from the vehicle. The SRBs fall back down to the Earth where they were parachuted in for a soft landing in the ocean. They will be recovered by boat and then refurbished for a future shuttle mission. Now the 3 main engines are on their own. As we get higher, more and more fuel will be used up from the external tank. This means that the shuttle will keep getting lighter. We have to keep throttling down the engines or we'll accelerate too quickly. The maximum amount of acceleration we want the astronauts to feel is 3 Gs, or 3 times the force of gravity pushing them into their seats. At about 8 minutes and 30 seconds, we have main engine cutoff, or MECO. This must happen before the tanks run dry so that the engines aren't damaged. The external tank is now detached. We're not in orbit yet, so the tank will head back down to Earth and burn up in the atmosphere. The 2 doors on the bottom side of the shuttle will close now that the external tank is gone. If they didn't close, we would have gaps in the heat shield at the end of a mission, which would not be so good. At this point, the orbiter vehicle is on the same path as the external tank. We're not quite going fast enough to stay in orbit around the Earth. Remember that the external tank had the fuel for the 3 space shuttle main engines, so we can't really use these anymore. Instead, we'll use the 2 OMS rocket motors. These each carry their own fuel inside of the pod here. This gives us that last push into orbit around the Earth. Now it's traveling at 28,000 kilometers per hour, many times faster than the speed of a bullet. Now it's time to do some science, release a satellite, or dock to the International Space Station. Okay, that was the part I wanted you all to watch within this video. Okay, it was such a beautifully animated video, right? All of this was made using animation, and there were so many details in that animation, right? It's a beautifully animated video. Do check the entire video out if you're interested. Link will be in the description. Okay, for now we're going to move ahead. Okay, let us start with space missions away from Earth. We are done with satellite launch vehicles. So for space missions, the spacecrafts must escape the Earth's gravitational force to travel into outer space. Outer space में जाने के लिए spacecrafts को Earth का जो gravitational force है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, उससे भागना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा, right? To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity of the Earth, as we have learned in chapter on gravity. So gravitation chapter में हमने पढ़ा था, right? Escape velocity. Generally, students confuse this with critical velocity. What is critical velocity? Height h पे पहुंचने के बाद सैटेलाइट को कितना वेलोसिटी लगेगा ऑर्बिट में जाने के लिए, दैट इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी. व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? वहां पे आउटर स्पेस तक पहुंचने के लिए ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए कितना स्पीड लगेगा, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. ओके, सो मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर विद व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी एंड व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. सो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए, आउटर स्पेस में जाने के लिए तुम्हें जो वेलोसिटी लगेगी वो है एस्केप वेलोसिटी. उतना इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए स्पेसक्राफ्ट के पास. सो कैलकुलेट कैसे करते हैं? वी नो द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm by r. g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट व्हिच इज अर्थ. r is रेडियस ऑफ द प्लैनेट व्हिच इज अर्थ. तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट
you get your answer as 11.18 kilometers per second. Okay, ये per second है, per hour नहीं है. So अगर तुम साइकिल चला रहे हो फास्ट या फिर तुम भाग भी रहे हो बहुत ज्यादा फास्ट भागोगे तो 11 किलोमीटर्स पर आवर तुम्हारा स्पीड होगा. बट ये 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड है, पर सेकेंड, यानी दादर से लेके CST तक 1 सेकेंड में. इतना फास्ट अगर होगा वो स्पेस क्राफ्ट तो ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल पाएगा. ओके, okay, let's move ahead with end of chapter questions. So the first question we are, I think we are only discussing one question in this learning session. Okay, so it's given on page number 144. Question number 3, answer the following questions. Question D, what is meant by satellite launch vehicles? Explain a satellite launch vehicle developed by ISRO with the help of schematic diagram. So what's the first, what is the answer to the first question? Answer to the first question is the vehicles with the help of which the satellites are placed in the specific orbits are called as satellite launch vehicles. Very simple, right? Then schematic diagram of satellite launch vehicle developed by ISRO. कौन सा is PSLV है, right? तो PSLV का भी हमने diagram देखा था just. So this diagram you should be able to draw and explain. Okay, so drawing is very easy. Explaining, we'll see how to explain. So make sure you're copying this diagram in your notebook. Make sure you're labeling it correctly. Okay. So once you draw this schematic diagram, now you will have to explain this. This question might be asked for around 3 to 4 marks. Okay. So once you draw this diagram, you start explaining it. So here is the explanation. It looks very big. Answer बहुत बड़ा लग रहा है, but it's not that difficult. Okay, अगर तुम step by step जाओगे नीचे से लेकर ऊपर तक तो काफी simple answer है. Okay. So first point, the PSLV. What is PSLV? Polar Satellite Launch Vehicle. Okay, the PSLV is a 4-stage satellite launch vehicle. Each of the stages contains fuel which is burned and each stage is detached from the vehicle after reaching a specific height. हर स्टेज के पास अपना अलग फ्यूल होता है जो पूरा का पूरा खत्म होने के बाद मेन व्हीकल से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है एक स्पेसिफिक हाइट पे पहुंचने के बाद. There is a place at the top of the 4th stage to keep the polar satellite to be launched. तो ये भी हमने देखा था, यहाँ पे टॉप पे हम जो कि 4th स्टेज के ऊपर है वहां पे हम सैटेलाइट रखते हैं. ये नीचे का पूरा पार्ट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जिसमें फ्यूल भरा होता है और फ्यूल का टैंक है. सैटेलाइट से इतना सा है, ये पूरा का पूरा फ्यूल के लिए चला जाता है. ओके, सो देयर इज अ प्लेस एट टॉप of the fourth, there is a place at the top of the 4th stage जहाँ पे polar satellite तुम रखोगे. Okay, amongst these 4 stages, the first stage along with 6 rocket booster engines provide the initial thrust to the launcher. तो हमने जो वीडियो देखा वो नासा का स्पेस लॉन्च व्हीकल था, राइट? तो उसमें सिर्फ 2 रॉकेट बूस्टर्स थे, वैसे हमारा जो PSLV है उसमें 6 रॉकेट बूस्टर्स होते हैं. ओके, सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे नीचे ये जो छोटे छोटे रॉकेट बूस्टर्स दिख रहे हैं ऐसे 6 है, वेराज जो नासा का हमने लॉन्च व्हीकल देखा था उसमें एक मेन टैंक होता है, उसके आजू बाजू 2 रॉकेट बूस्टर्स होते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नासा का लॉन्च व्हीकल एंड आवर ISRO का स्पेस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, सो दिस कंटेन्स सॉलिड फ्यूल. तो जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के साथ जो 6 रॉकेट बूस्टर्स भी है उनमें सब में सॉलिड फ्यूल है. ओके, the second and the 4th stages have liquid fuel in them, whereas the third stage works on solid fuel. तो तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज यानी ऑड नंबर के जो स्टेज है उसमें सॉलिड फ्यूल है, whereas इवन नंबर कौन से, सेकंड एंड फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल है. सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर. ऑड मतलब सॉलिड, इवन मतलब लिक्विड फ्यूल. ओके, दैट्स हाउ यू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड स्टेजेस increase. Second and the third stages increase the velocity of the PSLV and help it attain a desirable height. सेकेंड और थर्ड स्टेज से क्या होता है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है और उसको जो हाइट पे पहुंचना है वहां तक जाने के लिए हेल्प करता है. Whereas the 4th stage, which is the last stage, sets the satellite into desired orbit. ये हमने हमारे एनिमेटेड वीडियो में भी देखा था. वो जो लास्ट स्टेज होता है वो किसके लिए होता है, ऑर्बिट में डालने के लिए. एक बार ऑर्बिट में चला गया तो जो एस्ट्रोनॉट्स है वापस आ सकते हैं अपना काम करके. तो जो लास्ट स्टेज है वो हमेशा ऑर्बिट में डालने के लिए होगा. पिछले लास्ट स्टेज से पहला जो कोई भी स्टेज होगा वो हाइट अचीव करने के लिए और स्पीड अचीव करने के लिए होगा. सो वेरी सिंपल आंसर है, दिखने में काफी बड़ा आंसर है ये, बट वंस यू ड्रॉ दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, बस इसको डायग्राम को देखते हुए तुम्हें एक्सप्लेन करना है. ओके, कि 4th स्टेज के ऊपर सैटेलाइट रखा है, नीचे फर्स्ट स्टेज के साथ 6 रॉकेट बूस्टर्स होते हैं,
फिर बाद में ऑड नंबर्स में सॉलिड फ्यूल होता है, इवन नंबर्स में लिक्विड फ्यूल होता है, बाकी के सारे स्टेज से वेलोसिटी और हाइट इंक्रीज होता है, फोर्थ स्टेज से ऑर्बिट मिलता है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो मिलता है ना वो क्रिटिकल वेलोसिटी फोर्थ स्टेज की वजह से मिलता है। ओके, सो बस इस डायग्राम को देख के तुम्हें एक्सप्लेन करने अलग अलग पॉइंट्स एंड यू शुड बी फाइन। तो ये सब कुछ पूरा पूरा बिना देखे बाय हार्ट नहीं करना, बाय हार्ट दिस पर्टिकुलर डायग्राम फर्स्ट, और एक बार डायग्राम बाय हार्ट कर लिया तो ये आंसर लिखना काफी इजी हो जाएगा डायग्राम को देख के। ओके, so that was your answer to that question. One last question for today's learning session is again question number 3. Answer the following question given on page number 144. E question: why is it beneficial to use satellite launch vehicles made of more than one stage? एक स्टेज से ज्यादा स्टेजेस वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्यों बनाते हैं हम लोग? सिर्फ सब कुछ एक टैंक में रखने से क्या प्रॉब्लम होने वाला है? I've already explained that answer to you all, so I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and try to write the answer by yourself. See, many of the answers, majority of you know the answers. Okay, now your struggle is writing those answers in point-wise form in a logical and understandable form. So that you have to practice again and again. Okay, so whenever I give you the chances, take those opportunities to practice. Okay, don't just copy it directly in your notebook. Don't just copy the correct answer directly in your notebook. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to write the give reason by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you are done with your answer. Let us see the answer now. Okay, so first point, fuel in the launch vehicle forms the major part of the total vehicle, total weight of the launch vehicle. Okay, सबसे ज्यादा वेट किसका होता है किसी भी लॉन्च व्हीकल में? उसका फ्यूल का सबसे ज्यादा वेट होता है। Thus, the vehicle has to carry large amount of weight in the form of fuel with it. So सबसे ज्यादा जो वेट होता है वो फ्यूल का ही होता है, क्योंकि फ्यूल ही सबसे बड़ा पार्ट है तुम्हारे लॉन्च व्हीकल में। For the launch vehicles with more than one stage, the fuel in the first stage is used to give the initial thrust of the vehicle. अगर एक से ज्यादा स्टेज होगा किसी भी लॉन्च व्हीकल में, जो फर्स्ट स्टेज होगा तो स्टार्टिंग में उसको फोर्स है, थ्रस्ट यानी फोर्स। ओके, तो स्टार्टिंग का जो फोर्स मिलता है व्हीकल को फर्स्ट स्टेज से मिल जाता है। आफ्टर दिस फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, empty fuel tank along with the engine is detached from the main body of the vehicle. एक बार फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है, तो तुम वो फ्यूल का जो टैंक है उसको भी निकाल सकते हो, और फ्यूल का जो इंजन है, फर्स्ट स्टेज का जो इंजन है उसको भी तुम निकाल सकते हो। सो फ्यूल टैंक भी निकल गया और इंजन भी निकल गया, राइट? इससे क्या होता है? दिस रिड्यूसेस द वेट, दिस रिड्यूसेस वेट ऑफ द व्हीकल स्टेप बाय स्टेप। छोटे छोटे स्टेप्स में उसका वजन कम होते जाता है लॉन्च व्हीकल का, और जैसे वजन कम होते जाएगा उसका स्पीड इंक्रीज होगा, उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। हेंस लिख दो, कॉमा डाल दो और क्वेश्चन को वापस लिख दो। हेंस it is beneficial to use satellite launch vehicles made of more than one stage. Okay, that's how you write the conclusion for any give reason type of question. This question can also be asked as a give reason. So that's your answer to that question. So we are done with the last end of chapter question for this learning session. So that is it for this learning session. Let's check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me the various stages of satellite launch vehicle? कितने स्टेजेस होते हैं, क्यों अलग अलग स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज का क्या काम है, सेकंड स्टेज का क्या काम है, किसमें लिक्विड फ्यूल होता है, किसमें सॉलिड फ्यूल होता है? If you can answer all of these questions and if you can explain all stages of a satellite launch vehicle, then yes, you have achieved this learning objective. Okay, so that is it for this learning session. I hope you enjoyed the video. Do check out the video links I send in the description of this video. Okay, there are many interesting videos about satellite launches available on the internet. You can search by yourself also, but that animated videos का पूरा version मैं description में डाल दूंगा 15 minutes का। SpaceX के जो वापस rockets वापस अर्थ पे आते हैं उसका भी वीडियो ढूंढ के डाल दूंगा। Okay, so if you're interested, I highly recommend you go and explore those videos as well. So that is it for this learning session, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.